In previous video, we explained about the acceleration. There are the two type of acceleration. One is uniform acceleration. Another is non-uniform acceleration. Okay. Today we discussing about. Today we discuss about the problem equation of uniform acceleration. Today we discuss about that. Okay, we discuss about the equation of uniform acceleration. There, all of you know, there are the three type of equation. So we discuss all these three first. Suppose any body is moving from point A with the acceleration A, initial velocity or initial speed is u, and after t second body reached at B, total distance is taken by the body is s. Okay, so we have a let u is the initial velocity, v final velocity after t time. Okay, during this time it covered the distance s is the distance. Okay, A with the acceleration which applied, which uniform acceleration is given. Uniform acceleration. Okay, so these quantity are given t with the time. So first of all we want to find the first equation. We have to use here calculus method, that is the integration method. It is very बहुत easy होता है इससे निकालना, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन मेथड से यूज करेंगे. तो इंटीग्रेशन मेथड में हमें पता है, we know the velocity acceleration is equal to dv by dt. Okay, acceleration is equal to dv by dt. Okay, so dv equal to a dt. Integrating both sides, dv equal to a dt. We putting the sum limit here u to v and 0 to t. Okay, according to integration rule, x to the power dx is equal to x ka power n plus 1 divided by n plus 1. And if we are taking only dx, that will be equal to x. So similarly we have here operator is v and it is a dv. So we integration of this one is u to v. ये हमारा u से v लिमिट गिवन है, केवल dx होगा तो x होगा और dv है हमारे पास, तो dv का हमारा आ गया dv इक्वल टू u टू v. ठीक है, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे u टू v लिमिट आ गई हमारी. ये इनिशियल स्पीड है, ये फाइनल स्पीड है. देन वी हैव a एक्सेलरेशन इज देयर, दैट इज dt 0 टू t इज देयर. ठीक है, और यदि हम यहाँ पे dt का भी इंटीग्रेट कर लें तो dt का इंटीग्रेट करने पे हमारा आएगा 0 टू t. सो वी हैव नाउ these are the two limit. It is the higher limit and it is the lower limit. Okay, so we have to subtract, we have to put the higher limit first, v minus u, and that is equal to a t minus 0. So this equation becomes u plus at. It is the first equation of motion. It is the first equation of motion, that is the u v equal to u plus at. It is the first equation. Okay, so very easy. Just we are using here a equal to dv by dt. ओके, तो ये हो जाएगा हमारा dv a dt. a हमारा यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, बाहर रख लेंगे. dv का हमारा आ गया v to u a t 0 to t.
V equal to U plus AT. Now we come to second equation. In second equation, body covers the distance S during the time T. So we have to use here to find V. We know the V equal to dx by dt. यहाँ पे हमें डिस्टेंस के साथ इक्वेशन लेना है. V equal to dx by dt. तो ये आ गया हमारा V dt equal to dx. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड 0 to s. और ये हमारा आ गया V 0 to t dt. V dt. Now we put the value of V. V अभी अपन ने निकाला है. U plus AT आ रहा है. ठीक है, U plus AT आ रहा है तो हम यहाँ पे V की जगह U plus AT रख दें और ये पूरा ऑपरेटर हमारा dt है. इंटीग्रेट करते हैं. dx का इंटीग्रेशन हमारे पास x हो गया, अभी बताया था मैंने. और यहाँ पे u है और u dt आएगा तो इसका t हो जाएगा 0 to t. ओके, प्लस a t का पावर 1 है तो 1 plus 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0 to t. ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ पे. तो ये कितना हो जाएगा, s इक्वल टू ut plus half a t square. It is the second equation of motion. All of you know very well. It is a very famous equation. That is the ut plus half a t square. We again repeat it now. V equal to dx by dt is there. So v dt. So v dt equal to dx. Dx is 0 to s. And here we have taken the limit 0 to t. It is at 0 to t. यहाँ पे v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे u प्लस ए टी. आप दोनों को सेपरेट करोगे u dt, ये हमारा प्लस है u dt. तो dt का हमारा t हो गया 0 to t. तो a इक्वल टू t स्क्वायर बाई 2. इट इज द सेकेंड इक्वेशन. नाउ कम टू द थर्ड इक्वेशन. इट इज द सेकेंड इक्वेशन. नाउ वी कम इन फॉर द थर्ड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन, इन थर्ड इक्वेशन ऑल ऑफ यू नो देयर आर नो टाइम. टाइम का कोई भी टर्म थर्ड इक्वेशन में नहीं होता. सो वी आर टेकिंग द एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस. तो हम एक्सेलरेशन जो है वो डिस्टेंस के फंक्शन के फॉर्म में कैसे लेते हैं हम लोग, dv बाई dt. ये होता ही है. अब dv बाई dt होता है तो हम dx बाई dx कर दें सीधा. ये आ जाएगा हमारा dx बाई dt. ठीक है, इनटू dv बाई dx. am I right? a equal to dv by dt plus dx by dt. and dx by dt हमारा v होता है तो v dv upon dx. so acceleration is v dv by dx. this formula is used when velocity is the function of x. that means velocity depends on x. so it is a dx is equal to v dv. a dx is equal to v dv. integrating both sides, taking limit 0 to s, and here we are taking u to v. okay, now a is the constant, so we have a is a constant there. ठीक है, उसको हमने इधर लिख देते हैं. Now a is a constant, so a into dx equal to v dv. integrating limit 0 to s, initial to final. a x का x आ गया अपने पास 0 to s, that is the v 1 plus 1 divided by 2, and it is the limit u to v. So a into s is equal to v square minus u square by 2. So it is the 2as is equal to v square minus u square, and v square is equal to u square plus 2as. Okay, so it is the third equation. This one is the second equation and this one is the first equation. You have already know about it.
ये आप अदर क्लासेस में भी, जूनियर क्लासेस में भी कर चुके हो, ठीक है। इट इज अ वेरी फेमस इक्वेशन. नाउ वी आर टेकिंग द फोर्थ इक्वेशन. वी आर ऑल्सो टेकिंग अ फोर्थ इक्वेशन. फोर्थ इक्वेशन क्या होता है वो भी बताते हैं. फोर्थ इक्वेशन में डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, ओके. तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड in nth second. What is the meaning of this term? Nth second. Suppose कि कोई भी बॉडी, सपोज कि 5 सेकेंड में ये बॉडी ट्रेवल कर रहा है 25 मीटर, और 6 सेकेंड में ये बॉडी ट्रेवल कर रहा है 30 मीटर, ठीक है. नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन लास्ट 6th सेकेंड. 6th सेकेंड, उस पर्टिकुलर सेकेंड जो 6 सेकेंड है, उस पर्टिकुलर 6 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. वी जस्ट फाइंड आउट बाय 30 अपॉन 25, that is the 5 meter. It is the distance in 6th second. It is the distance in 6 second, that is the 5 meter. Okay. So we can calculate the nth second means distance travel in n second and distance travel in 1 second before. We subtract both of them, then we get as nth. That means distance travel in particular n second. Okay. So now we have to find as nth. As nth means we have to find here Sn minus 1. N is the total time, that is there, and n minus 1 second before. Okay. So Sn में un plus half, अभी भी अपन ने निकाला इक्वेशन, we are using there, putting the value of n instead of t, minus un minus 1 plus half n minus 1 whole square into a. So we subtract both of them. दोनों को हमने यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है. un minus 1. Okay. So now we have to find the distance Snf. It is equal to un plus half an square minus, in this case un minus u plus half a n square minus 2n plus 1. Am I right? Okay. So now we have a un plus half an square minus un plus u plus half minus half an square plus 2n minus 1 a by 2. This will be the cancel out, these two terms. Then we have a Snth is equal to u plus 2n minus 1 a by 2. So it is the equation for nth second. Okay. Again we look distance covered in n second, that is Sn. Before 1 second, that is Sn minus 1. So Sn is equal to un plus half an square minus un minus 1 plus half
n minus 1 whole square into a, n minus 1 into a. Okay, दिस टर्म को तो ये एज इट इज लिख देंगे, माइनस इसको हमने ब्रेक कर लिया, देन वी गेट दिस फॉर्मूला. इट इज द फोर्थ, इट इज कॉल्ड द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ओके, now we come to apply these formulas in case of motion under gravity. All of you know what is the gravity. When we drop any body, it always moving toward the center of the earth. So during this motion, there are the certain acceleration acquired by this body, and that acceleration is called the acceleration due to gravity, and it is constant for all bodies at a place. It is changed from place to place due to the another region, but at the same place. Suppose we are living in Jaipur, so in Jaipur, value of a small g, that is the acceleration due to gravity, it remains constant for the every body, everything. Okay, so now we find the equations, we discuss the equation, body moving under gravity. जानते हो ना, ग्रेविटी जैसे कोई भी बॉडी को देखते हो हमेशा नीचे गिर जाती है, तो बॉडी जो नीचे गिरती है इसका मतलब है कि देयर विल बी द सर्टेन फोर्स which attract the body toward the center of the earth, and during that motion there will be some acceleration acquired by the body due to that force, that is called the acceleration due to gravity, and which is always denoted by z. So equation of motion from equation of motion under gravity, okay, so equation of motion under gravity, first one, when first we take, if body is moving upward, okay, if body is moving upward, then how to calculate? When body is moving upward, that means body is starting from here. Okay, we are taking the origin here, and along this direction all quantities are positive, and opposite of this direction are taken as the negative. G is always acting toward the center of the earth, that is the vertical downward. So we are, G is always taken vertical downward. So now acceleration is here minus z. Okay, suppose it is this height h, body is reached here, it is starting from the speed or velocity, that is the u, okay, and it reached at the time t, acceleration is minus z is there. So v is equal to u minus zt. It is the first equation. And second equation, h, we are taking the distance as a height, so h equal to ut minus half gt square. Ut minus half gt square. And third equation, that is the v square equal to u square minus 2gh. Okay, and fourth equation, that is the SNF, that is equal to u minus g by 2 into 2n minus 1. It is the fourth equation. So these four equations are using when body is moving in upward direction. Okay, so these equations are always using when body, suppose body is moving
upward direction. Okay, now we are taking another case when body is moving downward. It is the upward, and now body is moving downward. We are taking downward case. It is a downward. Okay, so in downward case, बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड फ्रॉम हियर टू हियर. ये बॉडी जो है यहां से डाउनवर्ड आ रही है. अब इस केस में हमें दो तरीका होता है लेने का. हम यदि मान लो यही ओरिजिन मान लें तो जो भी डिस्टेंस इधर आ रहा है ऑल आर द नेगेटिव एंड इसके अलोंग पॉजिटिव. यदि हम इसको ओरिजिन मानते हैं जहां से बॉडी स्टार्ट हो रही है तो इस डायरेक्शन में ऑल आर द पॉजिटिव और इसके अपोजिट नेगेटिव. तो जनरली हम इसी केस को मानेंगे ओरिजिन ऊपर ले लें. कई बुक्स यदि मान लो हमने यहाँ पे लिया इधर तो सारे जितने भी वैल्यूज हैं ऑल आर कम्स नेगेटिव. जी की वैल्यू नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव आ जाएगा. तो ये डिपेंड करता है कि आपने ओरिजिन क्या लिया है. यदि ओरिजिन आपने नीचे लिया है तो जो बॉडी ऊपर जा रही है, बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो उसका जो वेलोसिटी है, फाइनल स्पीड है, एक्सेलरेशन है, ऑल आर नेगेटिव. ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को, इसमें क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूजन के कारण गलती कर देते हैं. तो इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि वी आर टेकिंग द ओरिजिन फ्रॉम वेयर द बॉडी स्टार्टेड टू मूव. तो हम इसको ओरिजिन मान लेते हैं. ये ओरिजिन है तो ये तो आ गया हमारा पॉजिटिव और इधर वाला सारा डिस्टेंस हमारा आ गया नेगेटिव. ओके, सो इन दिस केस वी हैव अ u. फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u, यहाँ पे एक्सेलरेशन हम क्या लेंगे प्लस जी टी. सेकेंड इक्वेशन लेते हैं. सेकेंड इक्वेशन आएगा अपना, सेकेंड इक्वेशन आ गया h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. इट इज द सेकेंड इक्वेशन. एंड थर्ड इक्वेशन बिकम्स v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. okay, so and fourth equation, that is fourth equation, that is the s nth. यानी मान लो टोटल ये n टाइम ले रहा है व्हेन इट रीच द ग्राउंड. ठीक है, जब ये ग्राउंड पे लेता है तो ग्राउंड पे इसकी ग्राउंड पे पहुंचने से पहले 1 सेकेंड पहले वो कहां पे था, तो वो डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से 2n minus 1. So these are the 4 equations using when body is moving downward. एक बात याद रखना कि जैसे बॉडी यहाँ से यहाँ तक आई है तो मैक्सिमम वेलोसिटी उसके सरफेस पे होता है. याद रखना, कभी ऐसा मत सोचना कि बॉडी वहां से ड्रॉप हुआ है और वो जैसे सरफेस पे आ गई तो वहाँ वेलोसिटी 0 हो गया. ऐसा नहीं होता. यहाँ क्या होता है कि वेलोसिटी हमेशा सरफेस पे, यदि बॉडी ऊपर से मूव करता हुआ आ रहा है तो जो सरफेस है तो सरफेस पे जो वेलोसिटी है दैट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी. ओके, सो नाउ वी कम टू इन थर्ड केस. थर्ड केस में क्या होता है, देखो ये है बॉडी को हमने यहां से छोड़ दिया. जब हमने यहाँ पे बॉडी को छोड़ा तो बॉडी क्या था, रेस्ट में था. अब जैसे हमने यहां से छोड़ा, एक्सेलरेशन एक्वायर किया, वेलोसिटी बढ़ी और वो सरफेस पे आया. और सरफेस पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है किसी भी बॉडी की जब वो बॉडी ऊपर से ड्रॉप करे या ऊपर से उसको हम मूव कराएं. ठीक है, तो थर्ड केस है हमारा बॉडी इज मूविंग फ्रीली, दैट इज इन फ्री फॉल.
बॉडी इज मूविंग फ्रीली, ये फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो थर्ड केस है व्हेन बॉडी इज मूविंग फ्रीली। इन दिस केस जब बॉडी फ्री मूव करता है, इस केस में क्या होता है, u की वैल्यू हमेशा यहां से बॉडी ड्रॉप हो रही है, तो u की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर u हमारा 0 होता है फ्री फॉल में, याद रखना। और ये हो गया हमारा h, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा इस केस में, इस केस में फर्स्ट इक्वेशन आएगा हमारे पास एक्सेलरेशन तो हम प्लस जी लेंगे, एक्सेलरेशन हमारा वही होगा a इक्वल टू प्लस जी। तो पहला इक्वेशन हो गया v इक्वल टू 0 प्लस जी टी, तो v इक्वल टू जी टी, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, h equal to half ct square because u is already 0, and third one v square equal to u square, u is already 0, so it is equal to 2gh, and third one s nth, h nth लिख दें यहाँ पर, that is equal to half g 2n minus 1, ये these are the four equation when body is falling freely। जब बॉडी फ्रीली इसमें मूव कर रहा है तो उस केस में जो हमारा इक्वेशंस होगा बॉडी को फ्री फॉल करने में, वो इक्वेशन ये लेंगे v इक्वल टू जी टी, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, एंड लास्ट वन इज दिस वन। अब इससे कंक्लूजन निकलता है व्हेन बॉडी इज ड्रॉपिंग हियर, तो फर्स्ट सेकेंड में और थर्ड सेकेंड में ये जो रेशियो आता है, ये रेशियो आप यहाँ से कैलकुलेट करके देख लो, वी गेट द रेशियो इज 1 is to अप टू एस एन तक लेंगे हम इसको, एस एन तक ये आता है हमारा 1:3:5 अप टू 2n माइनस 1, ये होता है इसका रेशियो जो डिस्टेंस कवर करता है फ्री फॉल बॉडी फर्स्ट सेकेंड में, थर्ड में, इन सब में, ठीक है। ये कंसेप्ट तुम्हें काम आएगा बहुत इन सर्टेन क्वेश्चन, जो सपोज कि ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर किसी टैप से गिर रहा है, सपोज कि फोर्थ जो हमारा ड्रॉप है वो ग्राउंड पे आ चुका है और फर्स्ट हमारा ऊपर है, इसके बीच में कई सारे ड्रॉप्स हैं, वो कितने डिस्टेंस में होगा, वी कैन कैलकुलेट बाय दिस। इस रेशियो से हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले सेकंड में g/2 आता है, ठीक है, दूसरे सेकंड में आप यहाँ 2 रखोगे 3g/2 आ जाएगा, ठीक है, थर्ड सेकंड में 5g/2 आ जाएगा। तो रेशियो क्या आ गया, 1 इवन ऑड नंबर का रेशियो आ गया 1:3:5, ठीक है। तो ये तो आ गया फ्री फॉल के केस में। अब डाउनवर्ड मूवमेंट में कुछ स्पेशल केस, फोर्थ केस लेते हैं व्हेन बॉडी थ्रोन अपवर्ड एंड रीच एट द मैक्सिमम हाइट, देन इट बॉडी रिटर्न टू द अर्थ। सो बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, फोर्थ केस, body is moving upward and reached at the maximum height, and return to earth। तो हम ये वाला केस ले रहे हैं कि when the body is thrown vertically upward, आप देखते हो किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हो तो कुछ देर में वापस आ जाता है, तो वो एक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो तुमने बॉडी को यहाँ से फेंका है, ये पहुंचा मैक्सिमम हाइट, ये हमारा मैक्सिमम हाइट है। एट द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज 0। नाउ वेलोसिटी इज 0 देयर, बट एक्सेलरेशन इज नॉट 0। इन दैट केस एक्सेलरेशन एक्टिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, सो इट अगेन बॉडी रिटर्न एज अ फ्री फॉल। तो ये फ्री फॉल का केस भी हो जाएगा, जैसे बॉडी वहां तक पहुंचा
तो वो वापस से फ्री फॉल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे बॉडी यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ये वापस बॉडी लौटेगी यहाँ से। ठीक है, बॉडी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद जैसे ये यहाँ से यहाँ तक गया, फिर ये यहाँ से क्या होगा, ये वापस आ जाएगा। ठीक है, बॉडी मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद ये वापस आ गया। तो इसमें क्या क्या होता है, कंडीशंस वो देख लो आप। पहली कंडीशन है एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी v is 0, फाइनल वेलोसिटी v is 0। ओके, बॉडी रिटर्न एज अ फ्री फॉल, फाइनल वेलोसिटी 0 बट एक्सेलरेशन रिमेन्स देयर, एक्सेलरेशन हमारे g के इक्वल ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करें, देखो अब इसमें बॉडी यहां से रिटर्न होकर के आ रही है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ascending time must be equal to descending time in absence of air. Generally we are always taking the in absence of air, but TA is less than TD in air resistance। यदि हम air resistance consider करें, वहाँ air resistance present है, तो ascending time always less than descending time। आने में वो ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि यहाँ पर फोर्स लगेगा, रेजिस्टेंस फोर्स जो उसके मोशन को अपोज करेगा वो एयर के थ्रू लगेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि बॉडी मान लो n सेकेंड में यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो मान लो बॉडी यहाँ से